Hello everyone. In last video we had talked about the part 1 of chapter 2, The Sound of Music, that was about how Evelyn Glenn reacted and she became a music maestro, a great percussionist even after being a deaf. In this second part we will read The Shehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan needs no introduction, a man who introduced Shehnai to the classical music as it is being heard these days. Shehnai was not like the same, it was not given such respect before the time of Bismillah Khan, but this man, with his legendary actions that he did for the improvement of the sounds of Shehnai, that it is now a matter of music which is heard in every house, whether it be a family function or any rituals or religious function. So Sehnai from that part of music has become now a thing which is accepted throughout the nation for its music. So, in before you read, you can see that there are some pictures given of some great music legends of our country, and this one, the man holding a pipe-like musical instrument, is that is called Shehnai, is none other than Bismillah Khan. So, let's read the story. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant साउंड. एम्पायर औरंगजेब ने अपने रॉयल रेसिडेंस में पुंगी नाम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पे बैन लगा दिया था क्योंकि इसका साउंड काफ़ी श्रिल, काफ़ी पतला और अनप्लीजेंट था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और पुंगी को रिलेट किया जाने लगा नॉइज मेकिंग इंस्ट्रूमेंट से. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों की उम्मीद थी कि ये एक दिन रिवाइव करेगा, दोबारा से अलाइव हो जाएगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, जिसकी पहुंच रॉयल पैलेस तक थी, उसने डिसाइड किया कि वो इस पुंगी के टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and had made 7 holes on the body of the pipe. उसने पाइप के नेचुरल हॉलो स्टम को थोड़ा और लंबा किया, चौड़ा किया और इसमें 7 होल्स किए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब वो इन्हें प्ले करता तो उसके फिंगर्स के ऊपर नीचे करने के अकॉर्डिंगली साउंड का वेरिएशन भी प्रोड्यूस होता. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को किंग के सामने पेश किया और सब कोई इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए, इससे प्रसन्न हुए. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it was the first played in the Shah chambers and was played by a nai. The instrument was named the Shehnai. अब क्योंकि इसको शाह के दरबार में पेश किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और वो भी एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा, सो देन इट गॉट इट्स नेम शहनाई. ओके, दैट इज शाहनाई से शहनाई. So, the sound of the Shehnai began to be considered auspicious. अब इसके साउंड को auspicious मतलब खुशकिस्मती लाने वाला समझा जाने लगा. And for the reason it is still played in temples and it is an indispensable component of any North Indian wedding. और किसी भी North Indian wedding में बिना शहनाई के तो शादी अधूरी मानी जाती है. In the past, the Shehnai was part of the Nawabi or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पहले तो राज दरबारों में जो 9 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, शहनाई उनमें से एक थी. Till recently, अभी तक it was used only in temples and weddings. अभी तक इसका इस्तेमाल होता था temples और weddings में. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah
खान। और इस अचीवमेंट में किसका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा योगदान है, तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार में डुमराव स्टेट के पास ही बिस्मिल्लाह खान बचपन में गिल्ली डंडे से खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kilograms। तो हर दिन खेल के बाद वो जाते कहाँ पे, इस टेम्पल में जाते और जहाँ पे भोजपुरी लोकगीत चैता गाते, जिसके कारण इनाम में उनको 1.25 किलो का लड्डू मिल जाया करता, जो कि वहाँ के लोकल महाराजा ही दिया करते। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, द भारत रत्न। और वो तो एक बहुत छोटी बात है, बात इससे कहीं आगे चल कर के हुई जब इस इंसान को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, दैट वाज द भारत रत्न। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म म्यूजिशियंस की फैमिली में बिहार में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब बात करें बिस्मिल्लाह खान के दादा की, तो उनका नाम था रसूल बख्श खां, जो कि शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर्स। और बाकी जो फादर साइड से जितने भी रिलेटिव्स थे वो सारे ग्रेट महान शहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन हिज लाइफ। और इस छोटे से लड़के ने भी म्यूज़िक को अपने लाइफ में काफ़ी पहले ही शुरू कर लिया। At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। 3 साल की उम्र में जब उसकी माँ उसे लेकर बनारस चली गई, तो वो अपने मामा को देख करके शहनाई के प्रति काफ़ी फैसिनेटेड, काफ़ी उत्सुक हुआ करता। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares, where Baksh was employed to play the शहनाई। तुरंत साथ ही साथ वो कहाँ जाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो अपने मामा के साथ विष्णु टेम्पल बनारस में, जहाँ पर कि बख्श की ड्यूटी थी शहनाई प्ले करने की। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई प्ले करते हैं और बिस्मिल्लाह बिल्कुल मुग्ध से उनके शहनाई को सुना करते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना शुरू कर दिया उन्होंने, और घंटों बैठकर प्रैक्टिस किया करते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। धीरे धीरे जो बालाजी की मंदिर थी और मंगला मैया की मंदिर थी गंगा के किनारे, वहाँ पर वो बैठकर खुद ही अकेले ही घंटों प्रैक्टिस किया करते ताकि सीख सके। सॉलिट्यूड मीन्स अकेले। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। धीरे धीरे उन्होंने उन रागास का भी पता लगाया, उन टोन्स का भी पता लगाया जो कि माना जाता था कि शहनाई की रेंज से बाहर है। At the age of 14, Bismillah accompanied the uncle to the Allahabad Music Conference। 14 साल की एज में ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ कहाँ पे एंट्री ली, अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज़ खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." उस्ताद फैयाज़ खान, जो कि उस वक्त एक जाने माने नाम थे, उन्होंने इस यंग लड़के के पीठ को थपथपाते हुए कहा कि अगर तुम ऐसे ही वर्क करोगे तो तुम एक दिन बड़ा नाम कमाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और 1938 में उन्हें एक बड़ा मौका मिला था जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पे आने का मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और तुरंत ही वो रेडियो पे एक बहुत सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर के रूप में फेमस हो गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became his first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करने वाले फर्स्ट इंडियन थे। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने शुरुआत की उस सेरेमनी की अपने शहनाई से। He poured his heart out into राग
Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. वो उन्होंने अपने राग से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, चाहे उसमें महात्मा गांधी हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसी समारोह के दौरान ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नाम की फेमस स्पीच दी थी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड इन अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान की जो ये मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस हैं वो इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड, विदेशों में भी काफ़ी फेमस हुई. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. जो अफ़गानिस्तान के किंग ज़ाहिर शाह थे वो इतने मूव हुए इस महान म्यूज़िक मेस्ट्रो के म्यूज़िक के कारण कि उन्होंने पर्शियन कारपेट्स, ईरानी कारपेट्स और कुछ और भी प्रतीक सम्मान सहित पेश किए. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूज़िक. लेकिन ये किंग ऑफ अफ़गानिस्तान इकलौते नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह की म्यूज़िक के फैसिनेटेड थे, दीवाने थे. फिल्म डायरेक्टर Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक एबिलिटी से प्रभावित एक ऐसे ही फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जिन्होंने गूंज उठी शहनाई नाम की मूवी बनाई. The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions that you might have heard, that is दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster. और इस फिल्म का ही ये गाना था जो कि पूरे देश में धूम मचाता रहा. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas's कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना. इन दो मूवीज़ में ही इनके म्यूज़िक की चर्चा हुई. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वो जोर देकर कहते हैं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की ये आर्टिफिशियलिटी, ये नकल और ये आर्टिफिशियल बनावटीपन पसंद नहीं आता है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट. अब सम्मान और अवार्ड्स काफ़ी जल्दी आ रहे थे. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिन्हें कि लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में परफॉर्म करने का मौका मिला. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इतना बड़ा नाम वो हो चुके थे कि उनके नाम पे तेहरान सिटी में तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने के बाद इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2001 में, वह भी उन्हें दिया गया था, भारत रत्न. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. That is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. जब उनके कंधों पे भारत रत्न को लगाया गया, का तमगा लगाया गया, तो उन्होंने इतना ही कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ. ये हिंदुस्तान की महान सभ्यता का एक हिस्सा है. यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी जो हैं वो भी इस सभ्यता, इस आर्ट को सीखने हमसे आती है. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. दुनिया भर घूमने के बाद भी खान साहब, जो कि बिस्मिल्लाह खान का काफ़ी प्रचलित नाम है, तो उनका जो पूरा दिल और पूरा जो ध्यान था वो हमेशा बनारस और डुमरांव, जहाँ पे इनका बचपन बीता था, वहीं इनका ध्यान हमेशा लगा रहता. और ये दोनों शहर उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक थे.
A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार तो उनके एक स्टूडेंट ने, जो कि USA का था, उन्हें ऑफ़र किया कि अगर वो चाहें तो बिस्मिल्लाह खान के लिए USA में बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा काफ़ी सारी मंदिरों के द्वारा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो खान साहब का ये पूछना था कि क्या वो रिवर गंगा को वहाँ तक ले जा पाएंगे. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. इसीलिए आगे कुछ दिनों में उनको ये कहते हुए भी सुना गया कि चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में वो हों, वो हमेशा ही हिंदुस्तान के लिए लालायित उत्सुक रहते हैं. While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga. जब मैं दुनिया में कहीं भी होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं हिंदुस्तान में होता हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने बचपन के उसी यूनिक मट्ठा, द थिंग विच इज़ मेड ऑफ कर्ड, उस मट्ठा के बारे में सोचता हूँ, उस मट्ठे के बारे में सोचता हूँ. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत के समृद्ध इतिहास का. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple. He is just an example. उनका लाइफ और वो खुद एक एग्जाम्पल हैं कि कैसे एक डिवाउट मुस्लिम, एक काफ़ी ऐसा मुस्लिम जिसे अपने धर्म के प्रति सम्मान है, लेकिन फिर भी वह काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह शहनाई बजाने को पहुंच जाता था. सो ही वॉज जस्ट नॉट अ मैन, ही वॉज द एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, द कल्चरल रूट्स, the cultural origins that Hindu and the Muslims of this country inherit. So that is about this lesson. Question answers you can do on your own. Think about it, and we will meet with some other chapter in our next video. So till then, thanks and very goodbye.